Hello students, welcome to the biology class of StudyGist. Today our topic of discussion is again heredity and evolution. So last day we have started the chapter, we have discussed some basic things. Today we will continue with that chapter. So in today's class the topic which will be covered, these are genotype and phenotype. What are these? About the F1 and F2 generation. And then we will start the crossing by monohybrid crossing by Mendel. Who is Mendel? Why he is so important? And what is the monohybrid cross? Regarding everything we will discuss today. I think that you will have the clear idea about it. Okay. But before we start, I want to give you a reminder about our social media platforms. StudyGist Academy is our YouTube channel. Do subscribe our channel. Like our Facebook page, join our Telegram channel. The name of our Telegram channel is StudyGist School 7 to 10 and the link is provided here and it looks like this. Okay, in this channel regarding the live classes, regarding the study materials, every updates, everything you will be getting before time. So do join this channel. Follow us on Instagram. And do join us with WhatsApp through WhatsApp community. Number is displayed over the screen. And for more updates or details, you just go and visit our website www.studygist.in. Now in Google Play Store, our app of StudyGist is freely available. It looks like this. It's a very much user-friendly app. And through this app, basically the live classes of every subject, these are conducted. And apart from the live classes, the recorded classes of each and every subject, as well as the notes and study materials, everything are available. So what are you waiting for? Just go download our app and install it now. Now this is how our YouTube channel looks like. Subscribe our channel as I told you earlier, and after this don't forget to hit the bell icon to get instant updates. This is how our Facebook page looks like. So like us on Facebook too for being united with us continuously. So let's get started. Last day about few terminologies we have discussed. We have discussed about what is gene, what is chromosome and allele, how allele is related to it. तो ये क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, एलील क्या है, हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो ब्रीफ में एक बार बता देती हूँ कि क्रोमोसोम हेरिडिटी का यूनिट है. मतलब क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस में रहता है, हेरिडिटी का यूनिट है जीन बेसिकली. तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रहता है, डीएनए का स्मॉल सेगमेंट है जीन, जिसके थ्रू हेरिडिटी, जिसको हेरिडिटी सप्लीमेंट कहा जाता है, क्योंकि इसके थ्रू ही सारे कैरेक्टर्स जो है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन दीज आर एक्सप्रेस्ड. ओके, पास होता है. इससे हम लोग ऑर्गेनिजम्स, हर एक ऑर्गेनिजम्स अपने आप को जो है डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू, डिफरेंट ट्रेट्स के थ्रू एक्सप्रेस करता है अपने आप को. ठीक है, तो क्रोमोसोम, जीन वो सब हो गया. नेक्स्ट वी आर कमिंग, हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि डोमिनेंट क्या होता है. डोमिनेंट में एक जीन हमेशा पेयर में रहता है, हम लोग पढ़े थे. और जीन पेयर में दो कैरेक्टर्स जो होते हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसमें से जो कैरेक्टर, मतलब जो जीन उस डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ही एक्सप्रेस होगा. और दूसरा जो कैरेक्टर है जो उसमें दोनों ही अगर आइडेंटिकल जीन रहा और आइडेंटिकल एलील रहा, उस दैट ओनली एट दैट कंडीशन दैट विल बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. जैसे कि कहा था मैंने कि ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों नहीं, ये तीनों कंडीशन बता देती हूँ. ठीक है, ये जो कंडीशन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें ये जो है कैपिटल लेटर से डोमिनेंट को एक्सप्रेस किया जाता है और स्मॉल से जो है वो रिसेसिव को एक्सप्रेस किया जाता है. ये भी मैंने कहा था. ये रिमेंबर, हमेशा ये याद रखना. ओके, सो ये जो कैरेक्टर है यहाँ पर ये दोनों सेम है. सो डेफिनेटली इसका जो ये जो कैरेक्टर को डिफाइन करता है दैट विल बी एक्सप्रेस्ड. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर द डोमिनेंट इज कैपिटल टी. सो द कैपिटल टी जिस कैरेक्टर को जिस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस्ड. एंड द कैरेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, विच इज अपहेल्ड बाय the small t allele, that will be suppressed by the expression of the capital T gene, capital T allele. Okay,
बट ओनली एट दैट कंडीशन जहाँ पर रिसेसिव जीन में दो ही एलील एक दूसरे से सिमिलर हो, only at that condition the recessive character will be able to express itself. तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, बिकॉज वेन एवर वी विल स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द मेंडल्स, उनका जो मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस है, ये सब टर्म्स विल बी कमिंग अगेन एंड अगेन, एंड एट दैट टाइम इफ यू डोंट हैव द बेसिक आइडिया अबाउट दैट, यू आर गोइंग टू फेस अ ग्रेट प्रॉब्लम. सो टू सॉल्व दिस आई एम हियर. दैट्स वाई ये जो टर्म्स है ये मैंने पहले ही आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की है, और आज भी कुछ टर्म्स मैं डिस्कस करूँगी. जैसे कि फर्स्ट है आज का जीनोटाइप, विच शोज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब एक ऑर्गेनिज्म का जितना भी जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक जितना भी कॉम्पोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज इंक्लूडेड विद इन द जीनोटाइप. मतलब जीनोटाइप अगर किसी ऑर्गेनिज्म का हम लोगों को मालूम है, इसका मतलब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से जीन हैं और कौन कौन से जीन कौन कौन से कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट आर नोन टू अस. ओके, in a simple words we can say that genotype is a description of genes present in an organism. ये याद रखने के लिए बड़ा अच्छा लाइन है कि जीनोटाइप जो है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना क्या क्या कैरेक्टर्स है, जीन है, कौन कौन सा जीन है, कौन कौन सा जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच कैरेक्टर, फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ विच कैरेक्टर, दोज आर प्रेजेंट और दोज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म जीनोटाइप. ओके, सो जीनोटाइप इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ लेटर्स. हमेशा है जीनोटाइप पेयर में ही रहता है, पेयर में ही हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, जहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन. ठीक है, ये हाइट का एक जीन है जिसमें से अगर कैपिटल टी रहा तो हम लोग उसको टॉल कहेंगे, स्मॉल टी रहा उसको हम लोग डॉर्फ कहेंगे या शॉर्ट कहेंगे. ठीक है, तो एक ही जीन का दो फॉर्म है या डिफरेंट फॉर्म्स है, कैपिटल एंड स्मॉल. Thus, the genotype of a plant could be capital T और capital T small t. ठीक है, तो capital T तो tall है, ठीक है, but capital T small t that is also represented by tall. Why this is tall? Because of the last concept which I have taught you yesterday, means in the last class. Okay, so वहाँ पर मैंने क्या पढ़ाया था कि एक जीन में अगर दो एलील में एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो जो डोमिनेंट एलील है जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहा है, और दैट जीन इज रेस्पॉन्सिबल विच कैरेक्टर दैट विल बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, और जो रिसेसिव है दैट विल बी सप्रेस्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द डोमिनेंट वन. ओके, तो यहाँ पर कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी को डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए इसका जो शॉर्ट या डॉर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज नॉट बीइंग एक्सप्रेस्ड, वेयर एज दैट ऑफ अ डॉर्फ प्लांट विल बी हैविंग स्मॉल टी. ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक और द ट्रेट विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म, इट इज फेनोटाइप. तो एक कैरेक्टर और ट्रेट जो भी आप लोग का हो, जो कि इन ऑर्गेनिज्म में जो भी विजिबल है, दैट इज कॉल्ड द फिनोटाइप. तो जीनोटाइप हो गया. अब आते हैं फिनोटाइप में. फिनो का मतलब है आउटर अपीयरेंस. ओके, आप लोग याद रखना, आउटर अपीयरेंस और एक्सटर्नल अपीयरेंस. ओके, सो जो कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट जो भी है विच इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग का हाइट, जैसे कि हम लोग आउटसाइड देखते हैं हाइट में, टॉल हाइट में, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. पर अगर हम लोग सिर्फ आउटर अपीयरेंस देखेंगे, एक्सटर्नल अपीयरेंस देखेंगे, तो ये दोनों जीन के लिए आउटर जो फेनोटाइप है दैट विल बी सेम, राइट. उसमें दोनों ही एलील जो है वो सेम रहे या दोनों में मिक्स रहे, एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो, उसमें डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर दोनों सेम रहे तभी जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा. अगर सेम टाइप का, सेम जीन का एक डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म रहे, उसमें भी हम लोग क्या जानते हैं कि डोमिनेंट जो है दैट विल सप्रेस द अदर एंड विल एक्सप्रेस इटसेल्फ कंप्लीटली. सो जो एक्सप्रेस करेगा उसी को हम लोग एक्सटर्नली आउटर अपीयरेंस में देख पाएंगे. सो इन दिस वे
the characteristics which is responsible for the outer appearance or external appearance of an individual or of an organism, that is called the phenotype of it. For example, जैसे मैंने कहा कि being tall and being dwarf or short are the phenotypes of a plant because these traits can be seen by us or they are visible to us. उसमें कौन सा प्योरली है और कौन सा मिक्स्ड है या हाइब्रिड है, हाइब्रिड टर्म है, ये टर्म को हम लोग हाइब्रिड कहेंगे, ठीक है। ये दोनों सेम रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर। और अगर मिक्स रहता है, ये दोनों हो गया प्योर आपका, और ये कंडीशन हो गया आपका हाइब्रिड, याद रखना, ओके, हाइब्रिड फॉर्म। तो यहाँ पर ये हम लोगों में जो विजिबल है आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स वो हो गया फिनोटाइप। The phenotype of an organism is actually its physical characteristics, not genetic. Genetic characteristics is expressed by genotype and physical characteristics is determined by the physical characteristics is determined or is expressed by the phenotype. Okay. Next we are coming to F1 and F2 generation. देख लेते हैं. When the two parents cross or breed to produce progeny, then their progeny is called the first filial generation or F1 generation. ये जो दो generation है F1 and F2, F1 is called first filial generation और F2 जो है उसको कहा जाता है second फिलियल। पेरेंट जनरेशन के बाद जो जनरेशन आती है वो है F1 जनरेशन, ठीक है। तो जब दोनों पेरेंट, जैसे क्रॉसिंग मैंने यहाँ पर दिखाया है, दिस इज द P जनरेशन, ओके, एंड द फर्स्ट जनरेशन दिस इज द F1 जनरेशन, ओके। सो जब दो पेरेंट क्रॉस करते हैं एक दूसरे के साथ टू प्रोड्यूस द प्रोजेनी एंड देन दैट फर्स्ट प्रोजेनी इज कॉल्ड द फर्स्ट फिलियल जनरेशन और F1 जनरेशन, ओके। और उसके बाद आता है F2 जनरेशन और सेकेंड फिलियल जनरेशन, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, व्हेन द फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी क्रॉस अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस द सेकेंड जनरेशन प्रोजेनी, दिस प्रोजेनी इज कॉल्ड सेकेंड फिलियल जनरेशन और F2 जनरेशन। मतलब पेरेंट जनरेशन में दो अलग अलग पेरेंट्स एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग करता है, दैट्स इज द साइन ऑफ फ्यूजन और क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग करने के बाद जो बनता है वो जो जनरेशन में बना, दैट इज द F1 जनरेशन और फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ओके। अब F1 से F2 हाउ इट विल कम, F1 जनरेशन विल बी सेल्फ्ड, ओके। जो F1 जनरेशन में बना है उसके साथ दूसरा F1 जनरेशन ऑफ सेम टाइप विल बी हैविंग क्रॉस बिटवीन ईच अदर, ओके। एंड by this crossing what will be produced after F1, F2 will be produced, right? F2 will be produced and F1 के बाद और during F1 by the selfing जो generation आता है that is called second filial generation or F2 generation. So in other words we can say that generation produced by the crossing of F1 progeny is called the F2 generation. Obviously the product of F1 progeny, the product of reproduction, or the product of fertilization or mating during the F1 generation, what comes? The F2 generation or the second filial generation. Okay. So for an example, one parent in a couple, mother and father are there, they are the parental generation. जैसे यहाँ पर है एक parent generation है, and their children, they are the first generation and their grandchildren are the F2 generation or the second filial generation. Now we are coming to the great scientist Gregor Mendel or Gregor Johann Mendel. He is the person, okay. Now he was the first scientist to make a systematic study of the patterns of inheritance which involve the transfer of characteristics from the parent to the progeny. Progeny मतलब क्या है? Progeny मतलब offspring, next generation,
progeny and parent, these are different. Okay, progeny of parent means the F1 generation, it is indicating the F1 generation. तो मेंडल ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी किया था, सिस्टमेटिक स्टडी के ऊपर जोर दिया था, टू मेक इट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस. जैसे कि सिस्टमेटिक स्टडी को एज अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जैसे कैरेक्टर जाते हैं उसी को इन्होंने फोकस किया था. कैसे जाते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ द ऑफस्प्रिंग और हाउ द प्रोजेनी ऑफ progeny characters are different from the parent characters, or which character of the parent is seen is observed in the progeny offspring. ये उन्होंने ये डिस्कवर करने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और जितने भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे वो बेसिकली था विद द और ऑन द पी प्लांट, दैट इज द Pisum sativum. Pisum sativum is the scientific name of pea plant. Okay, so he did this, he did all this observation, all these studies on the systematic studies of patterns of inheritance, which is moving, which is inherited from one generation to its next generation through the characters, through the assimilation and accumulation of characters. तो इसको उन्होंने किया था on or by using different varieties of the Pisum sativum plant or the pea plant. ये देख रहे हो आप लोग, which he grew in his garden. Actually he had a big garden. तो उन gardens में उन्होंने बहुत सारे pea plants, बहुत सारे variety का pea plants available है. तो these pea plants are planted and he started gardening. Okay. Some of these characteristics or traits of the pea plants whose transmission to the progeny was investigated by Mendel were height of pea plant, length of stem. So basically ये जो चार्ट है, this chart will help you to understand, to remember these, कि याद रखना हमेशा कि मेंडल जो है इन्होंने अपने गार्डन में बहुत सारे नंबर्स और बहुत सारे वेराइटीज के पी प्लांट को प्लांट किया था. ओके, तो इतने सारे पी प्लांट को प्लांट करने से क्या हुआ था, बहुत सारे क्रॉसिंग कर पाए थे वो, और इनमें से उन्होंने क्या देखा था कि इनमें से बहुत सारे डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखा गया. ओके, जैसे कि सीड का शेप, कुछ राउंड थे, कुछ रिंकल थे. फिर सीड कलर, समवेयर येलो, समवेयर ग्रीन. देन द पॉड शेप, और इसका ये जो पॉड का शेप देख रहे हो आप लोग, इसमें कुछ इन्फ्लेटेड थे, कुछ कॉन्स्ट्रिक्टेड थे, मतलब कुछ प्लेन. देखो यहाँ पर स्मूथ है, यहाँ पर जैसे सीड्स इनसाइड में है तो इसका पॉड का जो स्ट्रक्चर है वो सीड का आउटलाइन किसी तरह ले रहा है, इसलिए कॉन्स्ट्रिक्टेड है, मतलब स्मूथ कंटिन्यूअस नहीं है. ओके, और उसके बाद है पॉड कलर. पॉड कलर में देखो सम आर ग्रीन एंड सम आर एज वेल एज येलो. फ्लावर कलर जो है, फ्लावर कलर कुछ पर्पल था और कुछ वाइट था. ओके, नेक्स्ट द फ्लावर लोकेशन, समवेयर एक्सियल एंड समवेयर टर्मिनल. ये हो गया. और जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक जिसको लेके मैंने आप लोग को अभी तक एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल था प्लांट साइज, दैट मीन्स प्लांट हाइट ऑल्सो वी कैन से, समवेयर टॉल एंड समवेयर शॉर्ट और ड्वार्फ. ओके, तो मेंडल ने इतने सारे कैरेक्टर्स को देखे थे. कहाँ पर? इन हिज गार्डन, wherever varieties of pea plant he had planted in his own garden. Okay, so याद रखना कि pea plant में 7 pairs of contrasting traits are there. Okay, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मैंने कहा आप लोगों से, वो देखो एक दूसरे से कंप्लीटली ऑपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट करता है. तो ये एक उनका बेनिफिट था, बहुत बेनिफिट हुआ था इसीलिए. ओके, सो क्या क्या बेनिफिट हुआ था वो देखते हैं. बेसिकली वाई ही हैड चोजन द पी प्लांट फॉर हिज सच काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, बिकॉज some pea plants were tall whereas some others were dwarf or short. Some pea plants produce round yellow seeds whereas some produce wrinkled green seeds. So इतने सारे कैरेक्टर्स थे, तो 7 pairs of contrasting characters जो कि मैंने आप लोग को अभी कहा,
कि 7 pairs of contrasting traits और 7 pairs of contrasting characters were found in the pea plant. ओके, इसलिए बहुत ज़्यादा वेराइटी, तो बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग और ब्रीडिंग करवाने का जो अपॉर्चुनिटी था वो पी प्लांट को चूज करने से उनको हुआ था. अनदर रीजन क्या है, दे वर सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट, सेल्फ पॉलिनेटिंग नेचर. सो इससे क्या हुआ था, इट एनेबल देम टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द प्लांट वेरी इजीली. सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट में पॉलिनेशन बड़ा इजी हो जाता है और इससे नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बहुत ही स्मूथली और बहुत ही फास्ट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट फाइनली ही चोज pea plants to study the inheritance because many generation of the pea plants can be produced in a comparatively short time span and their study is much more simpler than of that of animals. So ये बहुत कम टाइम में, अपना लाइफ साइकिल जो है बहुत कम टाइम में ही हेरिडिटी के थ्रू इनहेरिटेंस हो जाता है बहुत कम टाइम में. तो कम टाइम में ही बहुत टोटल लाइफ साइकिल मिल जाता है, इसीलिए ये भी बहुत उनके लिए बहुत इजी हुआ था इन कंपैरिजन विद द एनिमल्स. एनिमल्स में बहुत टाइम लग जाता है, टोटल लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में सालों लग जाते हैं, लेकिन दिस अ वेरी क्विक मीन्स द होल जनरेशन टाइम जो है वो बहुत ही शॉर्ट है. तो इसमें भी इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था कि एक बार कोई चीज़ में फेलियर हो जाने के बाद दूसरी बार रिवाइव करके उसी चीज़ को दोहराने से बहुत अच्छे रिजल्ट भी उन्हें मिले और बहुत कम टाइम भी लगा. एक एनिमल के ऊपर करते तो बहुत टाइम लग जाता, बहुत सेवरल इयर्स लग जाता, लेकिन इससे क्या होता है, इससे उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा. इसमें बहुत शॉर्ट टाइम में ही इसका बहुत सारा जनरेशन जो है वो पार होता गया और उनके लिए जो उनकी डिस्कवरी थी वो ईजी होती गई. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या क्या रूल बनाए थे, उनका क्या ऑब्जर्वेशन था, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था वो. ओके, सो इनहेरिटेंस जो है वो क्या है, इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ, मतलब हेरिडिटी जो है एंड इनहेरिटेंस ऑलमोस्ट सिमिलर. सो दिस इज बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू इट्स नेक्स्ट जनरेशन. ओके, सो द मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे और वहां से जानेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये उनका एक मेंडल का एक लॉ है. ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहाँ से आता है, ये हम लोग जानेंगे. In order to trace the inheritance of a single pair of contrasting traits or characteristics among the pea plants, मेंडल ने क्या किया था, उन्होंने क्रॉस ब्रीड किया था the purebred pea plant differing in these traits and noted their occurrence in the progeny. तो उन्होंने क्या किया था, एक टॉल प्लांट के साथ एक शॉर्ट प्लांट और डॉर्फ प्लांट का उन्होंने पहले क्रॉसिंग किया था. सो ही फर्स्ट क्रॉस द प्योरब्रेड टॉल प्लांट, मतलब ये प्योर टॉल प्लांट के साथ एक प्योर डॉर्फ प्लांट का क्रॉस किया था एंड फाउंड दैट ओनली द टॉल पी प्लांट्स वेर प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट फिलियल जनरेशन और द F1 जनरेशन. तो इसके बाद उन्होंने क्या देखा, इसके बाद उन्होंने देखा कि सारे प्लांट्स जो है उसका कैरेक्टर क्या हुआ था, टॉल हुआ था. तो इससे ये डिसाइड हो गया दिस टॉल कैरेक्टर इज द डोमिनेंट ओवर द डॉर्फ कैरेक्टर और द शॉर्ट कैरेक्टर. ओके, सो उन्होंने कोई भी डॉर्फ प्लांट नहीं देखे थे. सो फ्रॉम दिस मेंडल कंक्लूडेड दैट द फर्स्ट फिलियल जनरेशन शोड द ट्रेट्स of only one of the plant, that's the tallness. dwarf जो था वो भी एक parent है, लेकिन that was not expressed in the F1 generation. Okay, the trait of the other parent plant or the dwarfness वो जो कि देखा नहीं गया progeny में, कोई उसका expression नहीं था. Okay, then he crossed the tall pea plants of the first generation and found that the tall plants and the dwarf plants were obtained in the second generation in the ratio of 3:1. उन्होंने देखा कि इसके बाद का जो जनरेशन था, जैसे कि F1 के बाद सेकेंड फिलियल जनरेशन यानी कि F2 जो है, उसमें उन्होंने डॉर्फ प्लांट, टॉल प्लांट सबका एक कॉम्बिनेशन देखा और जिसका जो रेशियो उनको मिला वो था 3:1. ओके, तो यहाँ पर देखो क्रॉसिंग में, यहाँ पर कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करने के बाद उनको जो भी F1 जनरेशन में जो भी मिला, दिस P जनरेशन, दिस F1 जनरेशन, जो भी उनको मिला, दोज वेर ऑल कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब एक हाइब्रिड टॉल प्लांट मिला. और उसके बाद जो मिला, उसके बाद उनको मिला दो कैपिटल, मतलब एक प्योर टॉल प्लांट
2 हाइब्रिड टॉल प्लांट और एक कंप्लीटली ड्वार्फ प्लांट। तो इसमें उनको कैरेक्टर मिल गया और दोनों कैरेक्टर यहाँ पर मिल गए उनको, कहाँ पर, F2 जनरेशन में। सो कह सकते हैं कि F2 जनरेशन में 3/4 प्लांट वर टॉल इससे और 1/4 प्लांट जो था वो ड्वार्फ था। तो मेंडल ने क्या नोट किया था, उन्होंने नोट किया था कि ड्वार्फ ट्रेट जो है पी प्लांट का विच हैड द सीमिंगली डिसअपियर्ड, मीन्स ऐसा लगा कि वो फर्स्ट जनरेशन में वो डिसअपियर हो गया, क्योंकि कोई भी प्लांट ड्वार्फ नहीं दिखा था तो वो लगा कि डिसअपियर हो गया, शायद वो कैरेक्टर नहीं रहा। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि नेक्स्ट फिलियल जनरेशन में अर्थात F2 जनरेशन में वो फिर से रीअपियर हो गया, राइट, इट वाज रीअपियर। And he said that the trait of the dwarfness of one of the parent pea plant had not lost. इसे क्या हुआ था, सिर्फ सप्रेस हो गया था in the first generation and the second generation में वो re-emerge होके फिर से आ गया, right? It was only suppressed. He also noted that all the pea plants which are produced from the hybrid tall parents of the F1 generation were either tall or dwarf. Okay? तो उन्होंने क्या नोट किया था कि जो पी प्लांट्स थे दीज वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हाइब्रिड टॉल प्लांट और द F1 जनरेशन, वो आइदर टॉल था और ड्वार्फ था। ऐसा कोई प्लांट नहीं था विद द इंटरमीडिएट हाइट, मतलब आइदर टॉल प्लांट मिला था और ड्वार्फ पर प्लांट मिला था। कोई मीडियम हाइट, जो टॉल और ड्वार्फ के बीच का जो हाइट होता है, वैसे कोई मीडियम हाइट प्लांट उन लोगों को नहीं मिला था। इन दिस वे he showed that the traits are inherited independently. तो traits जो है वो एक दूसरे पे मतलब एक दूसरे को, ऐसा नहीं कि एक मिक्सचर हो रहा है या हाइब्रिड हो रहा है। सो इंडिपेंडेंटली जो ट्रेट्स है these are inherited from generation to generation. और ये किस लिए है, this is because if the traits of tallness or dwarfness has blended then the medium sized pea plant would have been produced. So अगर मिक्सअप हो जाता तब शायद ये होता, लेकिन ये मतलब मिक्सअप नहीं हुआ है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट कर रहा है। ओके, सो नाउ आउट ऑफ बेसिकली उन्होंने क्या किया था, 1064 पी प्लांट्स लिए थे और F2 जनरेशन में मिला था उन लोगों को, मतलब उनको मिला था इतने सारे प्लांट्स। इनमें से उन्होंने ये रेशियो कैसे निकाला कि 787 जो थे वो टॉल थे और 277 ये ड्वार्फ प्लांट था। ओके, इनसे जो रेशियो उनको मिला वो रेशियो ऑलमोस्ट 2.84, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3:1। तो ये उनको मिलने के बाद उनको ये है F2 जनरेशन का चेकर बोर्ड। तो ये क्रॉसिंग करने के बाद उनको क्या मिला, ये 1 2 3 4 ये हो गया प्योर टॉल, ये 2 और 3 हो गया हाइब्रिड टॉल, ये 4 हो गया ड्वार्फ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो कि है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, द कैरेक्टरिस्टिक्स और द ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर डिटरमाइंड बाय द इंटरनल फैक्टर्स, राइट, विच ऑकर इन पेयर्स। ओनली वन ऑफ द पेयर में से कोई एक ऑफ सच फैक्टर कैन बी presented in a single gamete. Okay, next what's the explanation? Explanation ये है कि ये जिसके लिए जो ट्रेट मिलर ने कहा था कि जीन तब डिस्कवर नहीं हुआ था, तो जिस फैक्टर के लिए, जिस फैक्टर के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहा था, दैट ही टर्म्ड एज द फैक्टर्स। इट मीन्स दैट द प्योरब्रेड tall tea plant has 2 factors TT for the traits of tallness, और purebred जो dwarf plant है उसमें था small t as a trait of dwarfness, and the factors of inheritance of tallness TT separate into 2 gametes, that is capital T and small t. ये segregate हो गया, ये अलग हो गया इससे, right? और small t dwarfness के लिए जो TT था वो भी एक दूसरे से अलग हो गया, small t अलग हो गया था, right? And the gametes of the tall pea plant then crossed with the gametes of the dwarf pea plant by the process of fertilization, किसके लिए, zygote form करने के लिए। उसके बाद उसने क्या बनाया, उसके बाद it produced the F1 generation, progeny of F1 generation, which consists of the tall plants only, right? tall plants मिले थे, उसके बाद ये tall plants के बाद दोनों ऐसे hybrid tall में क्रॉस हुआ, और क्रॉस करने के बाद क्या मिला, F2 जनरेशन। तो पेरेंटल क्रॉस आप लोग का ये रहा,
मीन्स व्हेन द टू हाइब्रिड टी प्लांट्स दे वर क्रॉस्ड, देन हम लोगों को फिर से ये मिला, राइट? ए कंप्लीट टॉल, दिस इज हाइब्रिड टॉल, दिस इज ऑल्सो हाइब्रिड टॉल, ये कंप्लीट डॉर्फ, राइट? सो वी कैन सी फ्रॉम दिस चार्ट दैट F2 जनरेशन में जो था पी प्लांट्स प्रोड्यूस्ड, उसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिले. सो इससे जो रेशियो आता है वो रेशियो आता है आपका, अगर हम लोग फेनोटाइपिक रेशियो देखें तो टॉल प्लांट डॉर्फ फॉर्म में रेशियो आता है 3:1. लेकिन अगर हम लोग जेनोटाइप की बात करें तो ये टॉल में और ये टॉल में डिफरेंस है. मतलब दिस टॉल एंड दिस टॉल इज हैविंग डिफरेंस. दिस इज 1 एंड दिस कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल जो था वो हम लोगों को 2 अमाउंट में मिला था, 2 मिला था. तो दैट द फिनोटाइपिक रेशियो विल बी 3:1 एंड द जीनोटाइपिक रेशियो विल बी 1:2:1. All right. So this is all about today. See you in the next class. Thank you.